Shiv Kumar Sharma, Member of Curriculum Cell, SCRT, Government, Himachal Pradesh. Shiv Kumar ji, please. Yeah. Good afternoon to all. Good afternoon. I have the honor to present my view on this important meeting of Man Ki Baat. My topic I was assigned is bringing students back to the public sector schools. So I want to show some statistics at the national level. Please share. Yes. स्क्रीन शेयर कीजिए। राजेंद्र राजी, you are next. Is it visible, sir? Yes, you just speak, sir. I think it's not visible in the screen, is not coming. Yes, sir. Sir, your screen is not coming, so just speak about it only. अभी तक if we look at the national scenario about the school education system, we have 15.65 crore schools in public sector and 8.4 crore in private sector. So comprising 65% of the schools are in government or public sector, whereas 35% of schools are opening in the privately managed schools. So the trend is increasing day by day, and students and parents are willing to enroll their students in private schools. So there are so many reasons in this, because why the parents and students are interesting or attracting toward the private school. If we recall that government is opening a wide number of schools in villages, in the SSA scenario, there is a provision of opening a school in 1 kilometer radius of a habitat. And the effect of this scheme was that about 92,000 schools are single teacher schools in primary section. So they are teaching, one teacher is teaching 5 classes in a day. Whether the fact is that the number of students is very less, but however, he has to teach 5 classes per day. So we can think of the quality that a single teacher can give these students. Other factors which are important to see here are non-teaching assignments to the teachers, like MDM, midday meal, election duties, economic surveys, unnecessary communication of docs, surveys, all leads this to drop out from the government schools. So this is the reason गवर्नमेंट स्कूल्स और क्या बात है, इंस्पिरेशन तो ले रहे हैं, मैं कहने वाला था लेकिन तब तक वो थोड़ा सा हो गया। फिर मैं वो भी Sir, you are unmuted. Please, sir, you are mute. Please unmute yourself.
Yes, sir. Sir, please unmute कीजिए. Yeah. Hello. Shiv Kumar, sir, please unmute yourself. Yes, ma'am. Yes, sir. So ये क्या कारण है कि गवर्नमेंट स्कूल जो है वो लैग कर रहे हैं इन द एनरोलमेंट, और जो प्राइवेट स्कूल है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हैं. अभी तक ये पोजीशन है कि 35% ऑफ द स्कूल एजुकेशन इज कैप्चर्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स. तो यहाँ पर एक तो ये बात है कि जो वी हैव प्लेड विद नंबर्स, वी हैव ओपन्ड सो मेनी स्कूल्स, 1 किलोमीटर रेडियस स्कूल्स, बट दिस डज नॉट सर्व द पर्पस. क्योंकि स्कूल खोलने से, बिल्डिंग खोलने से और उस पर एक फट्टा लगाने से एक मतलब क्वालिटी एजुकेशन में हम लैग कर गए, और पेरेंट्स जो थे वो अब जो एजुकेट हो रहे हैं, और क्योंकि एक जो स्कूल सिंगल टीचर स्कूल है या गांव-गांव में स्कूल खोल दिए हैं और फैसिलिटी नहीं है, तो उससे जो साक्षरता मतलब जो निरक्षर से साक्षर लोग हो गए कि जस्ट टू रीड, बट एक क्वालिटी एजुकेशन जो एक नीड ऑफ द आवर है. आगे कंपटीशन का जमाना है कि हाउ टू मतलब एक सर्टिफिकेट लेने की बात नहीं है कि कम से कम जो एजुकेटेड पर्सन है वो अपनी रोटी रोजी कमा सके. तो उस भय, उस डर से कि हमारे बच्चे कहीं किसी काम के ना रहें, तो जो पेरेंट्स हैं, एक जो दिहाड़ी लगाता है, एक कुली भी है, वो भी अपने बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाह रहा है. क्यों? इसके क्या कारण है कि जो एक ह्यूमन है या एक नागरिक है, वो देखता है कि एक सिंगल टीचर कितने बच्चों को कैसे पढ़ा लेगा. तो वो समझ रहा है इस बात को, क्योंकि जो लेबर कर रहा है उसको पता है कि मैं किस तरह से पैसा कमा रहा हूँ और कल को मेरे बच्चे भी इस तरह की इस प्रॉब्लम फेस ना करें. तो जो एक तो सिंगल टीचर है और इतनी फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि और गवर्नमेंट को भी ये पॉसिबल नहीं होगा कि एक गांव-गांव में एक छोटा सा स्कूल के लिए 10 विद्यार्थी हूँ और वो 5 सेक्शन के लिए, 5 क्लासों के लिए 5 टीचर वहां पे मुहैया कराए और सारी फैसिलिटी जो हम दे सकें जो प्राइवेट स्कूलों में है वो कंपेयर करके हम हर स्कूल में दे सकें. तो और जो ये कारण है, ये हमारे जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, एक वो बच्चों को अच्छे, और उनके जो टीचर हैं वो होल टाइम टीचर हैं और उनके पास कोई इस तरह की एक्स्ट्रा या नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स नहीं है. तो इसके कारण जो है हमारे जो ड्रॉप आउट है, अब इनको जो लाना है, तो एक हमारे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की थी कि जिन स्कूलों से लोग पढ़कर अच्छी अच्छी पोस्टों पे या अच्छे अच्छे कार्य उन्होंने किए हैं, अच्छे अच्छे जो फील्ड में, अच्छी अच्छी नौकरियों में या समाज सेवा में जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, उनका एक तो बोर्ड वहाँ पे डिस्प्ले किया जाए उनके नाम, और उनको बुलाकर एक अच्छे अच्छे लेक्चर दिए जाएं बच्चों को, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं छोटे उम्र में वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो कि हम भी इसी स्कूल में पढ़कर एक अच्छा सा हम काम करेंगे और अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे. और उस स्कीम का जो नाम है वो दिया गया है अखंड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती. तो इसमें हमारे जो प्रवर्तमान मुख्यमंत्री हैं माननीय जयराम ठाकुर जी, वो भी एक सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले हैं अपनी कंस्टिट्यूंसी में. वहां पर जाके उनका भी बोर्ड में नाम लिखा गया है और वो भी अपने स्कूल में जाकर बच्चों को संबोधित करते हैं, जिससे अब इसका इम्पैक्ट ये पड़ा है कि बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. और कोई हो सकता है किसी गांव से कोई डॉक्टर निकला है, वो अपने गांव में उसको बुलाया जाता है, उसका नाम जो है बोर्ड पे स्कूल में लिखा गया है. और दूसरा है कि अभी गवर्नमेंट ने एक ड्रेस जो बांटने शुरू की है, टेक्स्ट बुक फ्री दे रहे हैं. और दूसरा एक कई बार ये बात होती है कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, तो गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दे रखी है हिमाचल में कि जो स्कूल, जो टीचर्स अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में रखना चाहता है वो रखें. और इस तरह से कई स्कूल हमारी स्टेट में खुले हैं. और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में
जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी शुरू की है और इफेक्ट एग्जीक्यूट करने के इसमें पब्लिक सेक्टर में दे दी है, उसमें ये कहा गया है कि जो अप टू प्राइमरी एजुकेशन है दैट शुड बी इन द मदर टंग। तो क्योंकि इसकी एक बड़ी जरूरत थी, तो वो हमारी स्टेट में भी उस तरह का ऑप्शन है कि जो अननेसेसरी किसी लैंग्वेज को ना थोपा जाए, तो ये भी एक बड़ा अच्छा हमारा ड्रॉप आउट को और पब्लिक सेक्टर स्कूल में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बच्चों को हम इसको कर सकते हैं। अब इस तरह का मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं कि हमारे एक नियर बाई, शिमला के नियर बाई एक स्कूल है, गवर्नमेंट मिडिल सेकेंडरी स्कूल रुगड़ा, जो शिमला के नियर बाई है। तो वहां पर हमारे एक अध्यापक हैं डॉक्टर संजीव शर्मा, साइंस टीचर हैं। तो उनको मिडिल स्कूल में भेजा गया और वो वैसे फिजिकली थोड़े हैंडीकैप्ड नहीं चल सकते हैं। आई हैव द वीडियो ऑफ दैट स्कूल बट इट कैन टू बी shared properly here. तो उस स्कूल में वो टीचर क्या करता है कि सबसे पहले उसने देखा कि 13 बच्चे हैं एक मिडिल स्कूल में। तो वो सबसे पहले क्या करता है कि उसका बेटा भी 6th क्लास में है, तो वो प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चे को उस स्कूल में लाता है एंड और वो घर घर जाकर पेरेंट्स को काउंसलिंग करता है कि गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं और कंपटीशन से, कमीशन से क्वालिफाई करके आए हैं, और अगर आप अच्छे बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनका मन पढ़ाने में लगेगा और वो भी अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, और अच्छे बच्चे जब आएंगे तो उनको देखकर, और अच्छी फील्ड में जाएंगे तो उनको देखकर सारे जो लोग हैं वो भी इस तरह को अट्रैक्ट करेंगे। तो और उसने एसएमसी की मीटिंग बुलाई और लोगों से कुछ उनको उनकी सहमति से एक ड्रेस कोड जो गवर्नमेंट जो प्राइवेट स्कूल की तरह होता है, उनको टाई का अरेंजमेंट किया, उनके लिए बैच लगवाए और ब्लेजर लगवाया और स्पोर्ट्स शूज और ट्रैक सूट। जैसे प्राइवेट स्कूल में ये 2 दिन हफ्ते में ट्रैक सूट होता है, तो वहां भी ट्रैक सूट लगाया गया। और उसके बाद जो इसका इम्पैक्ट, और जो वीकर सेक्शन के बच्चे थे उनके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई और वैदिक मैथमेटिक्स को बुलाया। जो नियर बाई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है, 2 प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टेट के दिल्ली में रहते हैं उनको उनके लेक्चर करवाए गए, इंस्पायरेशन लेक्चर कराया गया। जो मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ के प्रोफेसर यहाँ पे बुलाए गए, तो बच्चे बहुत प्रभावित हुए। एसएमसी की जब ये लेक्चर होते थे तो एसएमसी टीचर्स या पेरेंट्स को भी बुलाया जाता था। उसको अट्रैक्टिव होके उसका रिजल्ट्स 2-3 साल बाद आने शुरू हुए। उसका एक तो ये हुआ कि एक बच्चा इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस के लिए सिलेक्ट हुआ और 2018 में उसने जो हरियाणा में हुआ था उसमें उसने पार्टिसिपेट किया। 3 बच्चे इसरो के लिए उनकी जो कंपटीशन से सिलेक्ट हुई और जो बेंगलोर, इसमें कर्नाटक में इसरो का हमारा स्टेशन है, उस पे जाकर उन बच्चों ने वहां पर सारा प्रोग्राम देखा और उसके कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा अभी जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम बच्चे जो हैं अभी इस स्टेज में है, क्योंकि ये 2014 कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। आपका जो एफर्ट है, जो आपकी प्रयत्न है बच्चों को पब्लिक स्कूल में लाने का, और जो इंस्पायरिंग स्टोरी है जो आपके शिक्षक ने शिमला में की है, और अंडर प्रिविलेज सेक्शन के बच्चों के लिए स्पेशल क्लासेस लगाए हैं, तो अगर ये सब हो तो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग हिमाचल सरकार के इस कोशिश की सराहना करते हैं और मुझे आशा है कि मैक्सिमम बच्चे बैक टू पब्लिक स्कूल आएंगे, क्योंकि पब्लिक स्कूल में ज़्यादा क्वालिफाइड शिक्षक हैं और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल शिक्षक हैं, और मुझे आशा है कि फैसिलिटी और थोड़ा सा अगर हम लोग उन पे प्राइवेटली अटेंशन दें तो बच्चे प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा फीस दे के नहीं जाएंगे। और आपका जो प्रयत्न है वो बहुत अच्छा है और इंग्लिश मीडियम को भी खोलने का प्रयत्न अच्छा है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से काफ़ी और चेंज आएगा
और मुझे आशा है कि अगर मन की बात की कुछ स्टोरीज को इनकॉर्पोरेट करें तो बच्चों को और प्रेरणा मिलेगी आपके पब्लिक स्कूल में आने के। सो थैंक यू वेरी मच, आपने अपना समय दिया, आपने अपने समय दिया और आपका प्रयत्न के लिए थैंक यू वेरी मच। नाउ वी हैव द नेक्स्ट स्पीकर डॉक्टर एस बी चंद्रशेखर, he is a SADP